Aditi GS Center. So now we will going to learn about the current news updates. So our current news updates topic is electricity crisis in China, यानी चाइना में बिजली संकट. So what is the reason behind the electricity crisis in China? Now we will going to learn or understand about this electricity crisis in China in this lecture. So the reason behind the electricity crisis in China is the coal. There are the many reasons, but one of them and the main reason is the coal. The highways on the China are left into the darkness. The China is not turning on their red lights which is situated on the street light. तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस इन चाइना, यानी चाइना में बिजली संकट. तो क्या कारण है चाइना के अंदर बिजली संकट के, ये आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. तो कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस चाइना में, ये क्या है? कोयला है, कोल है. कई सारे कारण है, लेकिन उसमें से जो पहला और सबसे मुख्य वाला जो कारण है वो कोयला है. चाइना में जो हाईवे है, उधर हाईवे को पूरे अंधेरा, मतलब हाईवे में पूरे अंधेरा छाया हुआ है, यानी उधर लाइट नहीं जलाई जा रही है. और जो रेड लाइट है स्ट्रीट लाइट पर, इनको भी जलाया नहीं जा रहा है. द पावर क्राइसिस मीन्स द इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस इज बीन कॉज्ड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द कोल. As we know that the electricity is being generated from the coal. Now the China is facing that electricity crisis. तो जो पावर होता है, यानी जो बिजली होती है, उसका निर्माण किससे किया जाता है? कोयले से किया जाता है. तो अभी जो चाइना में जो बिजली क्राइसिस चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस चल रही है, ये क्यों हो रही है? कोयले के कमी के कारण, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ कोल. टुडे द 70% कोल Today the 70% of the electricity in China is generated by the coal. आज भी जो 70% इलेक्ट्रिसिटी है चाइना में, 70% बिजली जो है चाइना में, ये कोयले द्वारा निर्माण की जाती है. बट नाउ द चाइना इज फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ द कोल. सो द व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द शॉर्टेज ऑफ द कोल? वी विल अंडरस्टैंड नाउ. The reason behind the shortage of the coal is due to the corona. Now why due to the corona? Now we will understand that the Australia is the first country who blamed to the China as the China is the responsible for the production of the corona. तो जो कोयले है उसमें कमी क्यों आ रखी है? कोयले में कमी क्यों आ रखी है? कोरोना के कारण. कोरोना के कारण क्यों? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है, ये पहला देश है जिसने चाइना को दोषी ठहराया कि वो कोयला, मतलब जो कोरोना है उसका निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है. किसने दोषी ठहराया? ऑस्ट्रेलिया ने. The Australia is the world. The Australia supplies or it export the world's high quality coal to the China, means to all over the country. And also there are the friendly relations between the Australia and the China. And also the China imports or China consumes the larger amount of the coal from the Australia. But now the China had stopped importing the coal from the Australia because the Australia had directly blamed to the China that it is responsible for the generation of the corona. If the China will not import the coal, then how the electricity will get generated in the China? तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ये पूरी दुनिया भर में से ज़्यादा प्रमाण पर और हाई क्वालिटी का जो कोल है ये एक्सपोर्ट करता है, यानी दूसरे देश को भेजता है. चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली यानी मित्र के संबंध भी थे. लेकिन अभी मतलब जो चाइना है वो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा प्रमाण पर जो कोयला है वो इंपोर्ट या कंज्यूम करता था. लेकिन अभी चाइना ने जो ऑस्ट्रेलिया है उससे कोल यानी कोयला मंगवाना बंद कर दिया है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है इसने दोषी ठहराया है चाइना को कोरोना निर्माण के लिए. तो जो मतलब अगर जो चाइना है उसमें अगर कोयला नहीं आएगा तो बिजली की निर्माण कैसे होगी? So firstly, during the corona, at that time the factories were closed. But as the situation gets normal, the factories started reopened. They needs the electricity, but the coal is not available for the generation of electricity. The demand was increasing whereas the supply was decreasing. Now overall what was to do here? That is the electricity crisis in the China, and that has happened. तो पहले जो कोरोना काल में फैक्ट्रीज जो थी चाइना की वो पूरी बंद थी, लेकिन जैसे ही जो सिचुएशन थी वो नॉर्मल होने लगे तो वैसे ही जो चाइना के फैक्ट्रीज थे, कारखाने
कारखाने थे वो खुले होने लगे, तो उनको बिजली की ज़रूरत पड़ने लगी, तो बिजली निर्माण के लिए कोयला उपलब्ध नहीं था। तो होना क्या था, आफ्टर ऑल होना क्या था, अगर कोयला उपलब्ध नहीं है तो होना क्या था, चाइना में बिजली क्राइसिस हुई, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हुई, बिजली का संकट हुआ, जो कि अभी नज़र आ रहा है। The electricity crisis is due to the electricity production shortage, and the electricity production shortage is due to the coal shortage. तो इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस क्यों आया है, बिजली का संकट क्यों आया है, बिजली के उत्पादन में कमी के कारण। बिजली के उत्पादन में क्यों कमी क्यों आ रखी है, कोल के उत्पादन में कमी के कारण। यानी जो चाइना है वो ऑस्ट्रेलिया से कोल जो है वो इंपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कोल में कमी आएगी ऑब्वियसली, तो इसीलिए कोल की कमी के कारण चाइना में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हुआ है। दिस इज द पॉइंट नंबर 1. And during this time when there was the shortage in the production of the coal, and when the China had stopped importing the coal from the Australia, at that time the president of China, Xi Jinping, had taken the oath or had announced that they will achieve the carbon neutrality till 2060. The president of China had announced this in the UN General Assembly. So their 70% of the energy requirement comes from the coal. Then how they will be the energy, means how they will be the carbon neutral till 2060. तो जब भी मतलब इसी वक्त जब भी जो कोयला है उसकी कमी में उत्पादन हो रहा था, मतलब उसके उत्पादन में कमी हो रहा था और चाइना जो था वो इंपोर्ट घटा रहा था यानी बंद कर रहा था, तो इसी वक्त जो चाइना के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, इन्होंने कसम खा ली थी या इन्होंने घोषित कर दिया था कि वो 2060 तक वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। कार्बन न्यूट्रल यानी कार्बन मुक्त देश, तो कार्बन मुक्त देश वो 2060 तक हो जाएंगे। इन्होंने यूएन जनरल असेंबली में ऐसा घोषित किया था। तो अगर उनका 70% जो मतलब उनका 70% जो एनर्जी है वो कोयले द्वारा निर्माण होता है, तो वो कार्बन न्यूट्रल 2060 तक कैसे होंगे? If they want to be the carbon neutral, so they won't have to burn the coal, and if they will not burn the coal, then how electricity will get generated? तो अगर उनको कार्बन न्यूट्रल होना है तो उनको कोयले को जलाना बंद करना पड़ेगा। अगर वो कोयले को जलाना बंद कर देंगे तो एनर्जी जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली जो है, उसका निर्माण कैसे होगा? One more oath has been taken or one more announcement has been done by the president of China, that is in 2015. In the Paris climate deal, the Xi Jinping had promised of cutting down the 65% of the carbon dioxide emissions by 2030 in comparison of the country level at 2005. तो 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी, उस पेरिस क्लाइमेट डील में जो शी जिनपिंग थे, इन्होंने वादा कर लिया था कि वो 2005 में जो लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का, उससे 2030 तक वो 65% कम कर देंगे। India said that India will cut down the 33% of the carbon dioxide till 2030 as compared to the 2005. तो भारत ने भी ये कहा था कि भारत 33% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये 2030 तक कम कर देगा 2005 से कंपेयर करके। So China was not importing the coal. So if they were not importing the coal, how electricity would get generated? If the electricity would not get generated, then how the factories and all over the country will run on the electricity? So that's why the demand was increasing whereas the supply was decreasing. So that's why the China had told to their government and to their authorities that as much as possible they have to cut off their power, means power off, they have to cut off their power. Now the situation in China is like that the people are taking their breakfast or they are taking their meal by generating the torch lights of their smartphones. The shopkeepers are running their shops on the generator. The building's lift has been closed whereas many people has been trapped in the building's lift. तो चाइना जो है ये इंपोर्ट भी नहीं कर रहा है कोयले का, तो अगर वो इंपोर्ट नहीं कर रहा है तो जो बिजली है उसका निर्माण कैसे होगा? बिजली का निर्माण नहीं होगा
होगा तो जो फैक्ट्री है और जो पूरी दुनिया है बिजली पर चलने वाली वो कैसे चलेगी। तो डिमांड जो था वो बहुत बढ़ रहा था, सप्लाई घट रहा था, तो इसीलिए चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए चाइना ने अपने जो अथॉरिटीज़ है और अपने जो सरकार है उनको कह दिया था कि जितना पॉसिबल हो सके पावर कट कर दो। तो अभी चाइना में ये हालत चल रही है कि जो लोग हैं वो अपना खाना मोबाइल के टॉर्च लाइट जलाकर खा रहे हैं, शॉपकीपर्स जो है वो अपना दुकान जनरेटर की मदद से चला रहे हैं, और जो बिल्डिंग्स है उनके लिफ्ट तक बंद पड़ी है और उनमें लोग भी अटके पड़े हैं। Then the one more oath has been taken by the China, that is in 2020, one more oath has been taken by the China or announced that in 2022 in the Beijing they will held the Winter Olympics instead of the Summer Olympics। तो एक और कसम चाइना द्वारा खा ली थी, या एक और घोषणा चाइना द्वारा की गई थी कि 2022 में बीजिंग में समर ओलंपिक्स की बजाय विंटर ओलंपिक्स किए जाएंगे। द विंटर ओलंपिक्स मीन्स द प्लेयर्स प्ले ऑन द आइस। तो विंटर ओलंपिक्स में होता क्या है कि जो प्लेयर्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो आइस पर यानी जो बर्फ़ होते हैं उस पर खेलते हैं। द प्लेयर्स विल प्ले ऑन द आइस when the Beijing has the availability of the ice. So to be maintained the availability of the ice, the pollution must be less. To be the maintain of the availability of the ice, the heat must be less. The heat will be maintained less when there will be the pollution less. The pollution will maintain less when there will be the production of the carbon dioxide will maintain less. The production of the carbon dioxide will be the production of the carbon will be less when there will be the production of the coal will be less. So if the production of the coal will be less, how electricity will get generated? तो विंटर ओलंपिक्स में विंटर ओलंपिक्स समर ओलंपिक्स की जगह किया जाएगा। तो इसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो आइस पर खेलते हैं। तो जो खिलाड़ी है उनको बर्फ़ पे खेलने के लिए ज़्यादा मात्रा में बीजिंग में बर्फ़ की उपलब्धि चाहिए होगी। तो अगर बर्फ़ जो है वो ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो इसके लिए जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण जो है ये कम चाहिए होगा। बर्फ़ की ज़्यादा मात्रा के उपलब्धि के लिए जो गर्मी है ये कम चाहिए होगा, और गर्मी के कम होने के लिए जो प्रदूषण है वो कम होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रदूषण कम होने के लिए जो कार्बन जो है उसके उत्पादन में कमतरता होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। तो कार्बन के उत्पादन में अगर कमी होगी तो जो कोयला है उसके उत्पादन में भी कमी होगी, या उसका इंपोर्टेशन घट जाएगा, कम हो जाएगा। द शी जिनपिंग हैड अनाउंस्ड इन कोरोना दैट दे विल सक्सेसफुली कंप्लीट द विंटर ओलंपिक्स। तो शी जिनपिंग ने कोरोना में ही घोषित कर दिया था कि वो 2022 में विंटर ओलंपिक सक्सेसफुली कंप्लीट कर देंगे। सो फॉर द विंटर ओलंपिक्स they should have they want the clear weather, and they don't want the any type of the pollution। तो उनको मतलब विंटर ओलंपिक्स करने, तो इसके लिए उनको एकदम साफ सुथरा मौसम, साफ सुथरा वेदर चाहिए और उनको पॉल्यूशन नहीं चाहिए। सो इफ दे डोंट वांट द पॉल्यूशन देन हाउ दे विल जनरेट द कोल। तो उनको अगर मतलब पॉल्यूशन जो है, प्रदूषण जो है, या साफ सुथरा वेदर चाहिए, तो उनको अगर ये चाहिए तो वो कोयला कैसे जलाएंगे, कोयला कैसे जलाएंगे। सो इफ द चाइना हैज टेकन द ओथ और अनाउंस समथिंग, सो द अथॉरिटीज ऑफ द चाइना have to fulfill their needs. The Chinese government have kept the target that till 2021 means in 2021 they will reduce the 3% of the carbon production। तो अगर जो विंटर ओलंपिक्स में जो चाइना है उनको क्लियर वेदर चाहिए यानी साफ सुथरा मौसम और साफ सुथरा मौसम चाहिए, और उनको क्या चाहिए, जो पॉल्यूशन है वो नहीं चाहिए। तो अगर चाइना ने कौन सी भी कसम ली है तो चाइना की जो सरकारी अथॉरिटीज़ है वो इसे पूरा ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए चाइना की जो सरकार है उन्होंने क्या टारगेट रखा है कि वो 2021 में 3% कार्बन का जो निर्माण है ये कम कर देंगे।
The government said to the factories that they should not produce the carbon. If they will produce, the factories will be closed down. So that's why the factories in the China stop working. तो जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है चाइना की, उन्होंने फैक्ट्री को क्या कहा कि अगर आप कार्बन का निर्माण करेंगे तो आपके जो फैक्ट्री है उसे बंद करवा दिया जाएगा। तो इसी के कारण की वजह से जो चाइना में फैक्ट्री है उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया है। Had announced that the coal means they will reduce the production of the coal plant in their country for they should not have the carbon pollution। तो अभी जो प्रेसिडेंट है चाइना के, उन्होंने फिर से एक कसम खा ली थी, ये घोषणा कर दी थी कि वो अपने जो मतलब देश है उसमें कोल प्लांट जो है इसका निर्माण कम कर देंगे क्योंकि जो कार्बन पोल्यूशन है इनको कम करना है कार्बन पोल्यूशन को, इसीलिए वो कोल प्लांट को मतलब घटा देंगे, कोल प्लांट का निर्माण घटा देंगे। So if the factories in the China will be closed down, so how they will export the various types of the electric gadgets such as the mobile, computer, car, how they will export to the any other countries? So this is all about our today's news, that is the current news updates about electricity crisis in China. In it we have seen that there were the too many reasons behind the electricity crisis in China. One of them was the coal, and also the Australia is the world's first country who had blamed to the China that it is responsible for the generation of the corona. And also the Australia is the first country who exports the good quality of the coal to the other countries. But as the Australia blamed to the China stopped importing the coal from the Australia. They stopped importing the coal from the Australia. They cannot generate the electricity. They will not generate the electricity. So there will be the power crisis in the China. This is all about our today's news and the topic, that is electricity crisis in China. Jai Hind.